Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. Other source we are in, and the point of discussion we had yesterday was deemed dividend under section 222E of the Income Tax Act, which was regarding loan or advance given by the closely held company to the shareholder who are having substantial interest in the company, 10% or more on the date of loan, not at any time during the previous year. And if this company gives the loan, then the company itself would be subjected to pay DDT at the rate of 30% for November 2020 examination, and in the hands of the shareholder, such loan, such dividend, such advance will be fully exempted from tax. Friends, दो important judgments मैंने pending रखे थे. One, Delhi ITAT confirmed by Honorable Delhi High Court in the case of सुनील सेट्टी. अब ये सुनील सेट्टी के जजमेंट को फैक्चुअली समझने की ट्राई करें फ्रेंड्स. तो सी आई यूज द वर्ड फैक्चुअली समझने की ट्राई करें. सुनील सेट्टी वॉज द डायरेक्टर in a particular company, say X Private Limited, and this X Private Limited wanted to start, they are based at Delhi. Now X Private Limited wants to expand their horizon to Bangalore also. Mr. Sethi was traveling to Bangalore for his personal purpose, not for the purpose of the company. He was traveling to Bangalore. So company asked Mr. Sunil Sethi that it would be excellent if you can explore the property at Bangalore for the company and crystallize the deal being the director of the company. Mr. Sethi said yes, no problem. But Mr. Sunil Sethi said that in Bangalore, when I travel, I have to make the payment immediately. If I like some property for the company, I have to make the immediate payment from the company. Company said, okay, you make the payment then. Kaise? I am talking about an old judgment wherein this RTGS or NEFT or net banking was not working that much. So Sunil Sethi said कि company आप अपना मुझे check दे के रखो, so that I can make the payment to the seller at Bangalore for the DP down payment. Company सुनील सेट्टी को नाम लिखे बगैर का चेक देने के लिए तैयार नहीं थे. And that is the reason what company did was company transferred the fund in the account of Sunil Sethi by passing a board resolution. क्या board resolution pass किया? That company is authorizing Sunil Sethi to buy the property in the name of the company at Bangalore, for which company is transferring, say for example, 11 lakh rupee to the account of Sunil Sethi, which would be utilized by Sunil Sethi only for the purpose of purchasing the property in the name of the company at Bangalore. Sunil Sethi went to Bangalore and has tried to search for the property, but he could not get the success. So Mr. Sethi came back, and as he came back, friends, he was having 11 lakh received from the company as per board resolution. He could not purchase the premise in the name of the company. So ये जो fund transfer हुआ था, वो हमारे असेसी मिस्टर सुनील सेट्टी ने कंपनी को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. मैटर खत्म हो गई यहां पे फाइनेंशियली बिटवीन सुनील सेट्टी एंड द कंपनी. बट माय एओ वेकअप एंड एओ आस्क सुनील सेट्टी कि सर आपने जो ये रुपए रिसीव किए ना कंपनी से, ये आपके लिए 222E है, as it is loan
it is advances. Sunil Shetty said, sir, kya mazak hai? How can it be 222E? This is not 222E. How can it be 222E, sir? Just let me know. This was received by me not as a loan, but an amount for the purpose of the company, which I could not expend for company, so I have returned. पेटी कैश, जैसे नहीं डायरेक्टर आउट ऑफ अहमदाबाद जाते हो तो कंपनी उनको पेटी कैश दे के रखते। हम हमारे आप इन आर्टिकल से आप कहीं आउट स्टेशन ऑडिट पे जाओ तो आपके सर आपको जैसे पेटी कैश देते हैं, वैसे कंपनी के बिहाफ में सुनील शेट्टी आउट ऑफ अहमदाबाद जा रहा था तो उनको आउट ऑफ दिल्ली जा रहा था तो उनको पेटी कैश देते और खर्च नहीं होते, सुनील शेट्टी लौटा देते, तो उसमें थोड़ा 222 अप्लाई होता है। डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये बहुत बड़ी अमाउंट है, पेटी कैश जितनी अमाउंट नहीं है, पेटी कैश होती तो वी वुड हैव अंडरस्टूड, बट दिस इज 11 लाख रुपी इन दोज इरा, सो आई थिंक इट वॉन्ट बी एक्सेप्टेबल. Sunil Shetty explained with the resolution of the board of director authorizing him to buy the property on behalf of company. For that the fund transfer is made in the account of Sunil Shetty. Sunil Shetty is carrying his checkbook. He tried to search, he could not, he returned the money. He explained with facts, and Honorable Delhi ITAT confirmed by Honorable Delhi High Court said that here this would not attract 222E. The reason being, look at the intention supported by board of director resolution that the purpose of giving this money was not as a loan to. लोन का मतलब है सुनील शेट्टी को, डायरेक्टर को अपने पर्पस के लिए दो, उसको लोन बोलते हैं. ये लोन नहीं है साहब, ये एडवांसेस फॉर द वर्क ऑफ द कंपनी है. 222E is not applicable. Honorable Delhi High Court, very right judgment, but it's a perfect factual judgment. मेरे ही एक क्लाइंट का अभी केस है CIT अपील में. ड्यू टू दिस COVID-19 लॉकडाउन, the hearing could not be held, but rather the hearing was there before the lockdown was announced. I think it was on Friday before the lockdown, 20th, हाँ 20th मार्च का आई थिंक हमारा हियरिंग था. बट फ्रेंड्स, वी वर नॉट परमिटेड टू गो इनसाइड. वी वांटेड एडजॉर्नमेंट. लकीली इट इज ऑटो एडजॉर्न. बट द इश्यू वाज कि मेरी कंपनी में मेरे डायरेक्टर का 18 सितंबर को मान लीजिए डेबिट बैलेंस जा रहा है 8,70,000. इतना उसको पे किया है 18 सितंबर को. एंड मेरी कंपनी ने 31 मार्च को डायरेक्टर के खाते में 4,80,000 के रेमुनरेशन की एंट्री पास की हुई है. अब ये मेरा रेमुनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से ऑथोराइज नहीं है. आई एम ट्राइंग टू आर्ग्यू कि चलो 480 रेमुनरेशन, बाकी का जो बचा ना 390, वो डायरेक्टर को एडवांस फॉर कंपनीज वर्क दिया था. अब ये हम आर्ग्यूमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं बिफोर द ऑनरेबल CIT अपील. ईओ के सामने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने केस लड़ा था, ही कुड नॉट गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन. ही वाज गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बट ही डिड नॉट यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज and could not capitalize, and he has not made any submissions. So whatever we are furnishing before the honorable CIT appeal are considered to be additional evidences. हम अपील रिवीजन में ये पढ़ेंगे. बट ये एडवांसेस फॉर कंपनीज वर्क है. हमारा केस इतना वीक है कि अगर मैं CIT अपील हूं ना, तो मैं पहला आर्ग्यूमेंट करूं कि यार आपने 870 दिए, 480 का आप जो रेमुनरेशन बोल रहे हो वो तो पूरे साल का रेमुनरेशन है साहब. अगर ये पूरे साल का रेमुनरेशन है आपका, तो ये पूरे साल का रेमुनरेशन
18 सितंबर को थोड़े एडवांस में पे होता है, एंड अगर आपको पे करना है ना तो 5.5 महीने, चलो मैक्सिमम 6 महीने का रेम्यूनरेशन इसमें से गिनो, जो हम आपका डिम डिविडेंड नहीं गिनते। अच्छा, ये बाकी का 240 इज एडवांस रेम्यूनरेशन विच इज नॉट कस्टमरी, विच इज नॉट ट्रेडिशनल इन द कंपनी टू पे टू अदर्स, सो वी हैव रिजर्वेशन। प्लस ये 390 जो आप कह रहे हो कि एडवांस इज फॉर द वर्क ऑफ द कंपनी, इसका हमें अकाउंट दीजिए कि आपने कहां खर्च किए, और खर्च नहीं किए तो कब लौटाए। अब मेरे आगे का अकाउंट देखो ना साहब, ये केस मेरा अर्लियर ईयर का है, आगे के ईयर का अकाउंट देखो ना, तो ये रुपए कभी वापस आए ही नहीं है, रादर ये डायरेक्टर का बैलेंस इंक्रीज होता गया है। फ्रेंड्स, इन दिस केस माइन इज अ प्रीटी वीक केस, एक्सेप्ट मैक्सिमम 2,40,000। 2,40,000 ही कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये 6 महीने का रेम्यूनरेशन है, उसके ऊपर आपको क्या दे दे, चलो डिम डिविडेंड ना गिना, बट बाकी के अमाउंट के लिए माई केस इज नॉट अ गुड केस, नॉट अ साउंड केस। स्टिल फ्रेंड्स, वी आर फाइटिंग एज क्लाइंट हैज सेड कि नहीं, हमें तो लड़ना ही है, अगर हमें लड़ना ही है तो हमें लड़ना ही है। बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, इन माई केस सुनील शेट्टी वॉन्ट बी एप्लीकेबल, बिकॉज सुनील शेट्टी में रुपए लौटा दिए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन था। मेरे यहां ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन है, ना तो रुपए लौटाए। रेजोल्यूशन जो पास हुआ है रेम्यूनरेशन के लिए, वो भी 31 मार्च 2020 को पास हुआ है, लुकिंग एट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो एक मुद्दा हुआ। दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है फ्रेंड्स कि अभी आपने आज ये 222 ही पढ़ा, ऑफिस में जब आप कोई कंपनी का या कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के बुक्स चेक कर रहे होगे ना, तो आपके माइंड में ये 222 घूम रहा होगा। अब ये 222 जब घूम रहा होगा ना, तो आपको हर जगह पे 222 ही देखेगा। हमारी एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को काफी बार फंड ट्रांसफर किए थे। होता क्या था कि ए प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा में, डायरेक्टर का भी अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब पोजीशन ऐसी होती थी कि डायरेक्टर के अकाउंट से अगर चेक्स दिए हो और चेक क्लियर करवाने हो, डायरेक्टर के अकाउंट में रुपए ना हो, तो कंपनी से ये लोग क्या दे देते थे, ट्रांसफर। फिर जब डायरेक्टर के अकाउंट में रुपए आए, तब डायरेक्टर ये रुपए क्या कर देता था, रिटर्न। अब ये जो ट्रांसफर होती थी ना, वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख करके ट्रांसफर होती थी। एंड ये ट्रांसफर में फॉर द ईयर, से फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर 16-17 में मेरे डायरेक्टर में से ये केस में मेरा हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस जा रहा था डेबिट 21 लाख। AO wanted to apply 222। एक्चुअली मेरा जो केस था ना, वो लिमिटेड स्क्रूटिनी था। लिमिटेड स्क्रूटिनी, मेरे डायरेक्टर ने इंटरेस्ट इनकम कमाया था, सामने एक्सपेंडिचर सेक्शन 57 के बताए थे, उसके लिए था। तो ये मैटर पे हियरिंग होना था, पर लड़ने डेओ ने मुझे बोला कि मैं आपके लिमिटेड स्क्रूटिनी को कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटिनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बिकॉज देर इज आउटस्टैंडिंग लोन 21 लाख, वाई इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज 222E। Apparently, the AO is right, and it should be 222E, because मैंने बोला है वैसे लोन दी तो 222E, लोन का रीपेमेंट करो तो इसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट फ्रेंड्स मिलता नहीं है। कन्वर्टेड फ्रॉम लिमिटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव, एंड लर्नेड एओ ने तो पूरा मुझे A4 साइज के एक पेज की अलग अलग चीजें दी थी, जिसमें से ये एक पॉइंट था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट हो। तो मैंने कहा सर, बाकी के आपके जो मुद्दे हैं ना, वो प्योर एंड सिंपल डिबेटेबल है, ये 21 लाख जस्टिफाएबल है। आगे मैं असेसमेंट प्रोसीजर टॉपिक में
लिमिटेड एंड कंप्रिहेंसिव में ये समझाऊंगा, बट आई सेड ये जस्टिफाएबल है सर। इन्होंने कहा कि लिमिटेड स्क्रूटिनी को कंप्रिहेंसिव में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अदर आइटम से एडिशन हो, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। देन विद द अप्रूवल ऑफ माय हायर अथॉरिटी आई कैन कन्वर्ट द सेम फ्रॉम लिमिटेड टू कंप्रिहेंसिव। आई सेड फेयर, परफेक्टली सर। सो आप अप्रूवल ले लो इफ यू फाइंड इट ओके। इन्होंने कहा आई एम परफेक्टली ओके, आपको कुछ परेशानी लगती है पलक भाई? मैंने कहा सर आप 222E के वर्डिंग्स पढ़िए। What is 222E? Loan advances given by the closely held. A private limited is a closely held company. To the shareholder having substantial interest, agreed my director has got 23% shares. So here substantial interest. तो हो ही गया ना मैं उस तरह। आप आगे पढ़िए। Then the amount to the extent of loan subject to accumulated profit of the company. I repeat, subject to accumulated profit of the company, lesser of the two, will be deemed dividend under 222E. So 21 लाख की आपने लोन दी हुई है। मैंने कहा सर वो बराबर है, बट ये 21 लाख की लोन के सामने मेरा accumulated profit तो देखो। My company is having the huge accumulated losses of 4 crore and 25 lakh rupees. So 21 लाख की लोन, 4 crore 25 lakh का accumulated loss, whichever is less will be zero. And 222E cannot be applicable. Be careful. The company which are having the losses, 222E won't be coming into play. Friends, खास समझना, मेरी कंपनी एक्चुअली ह्यूज लॉस कर रही थी एंड लॉस वाली कंपनी ने लोन दी है, 222E won't come into play. Whenever you deal with the cases in your practical life, or I would humbly request you in examination even, read the case, read the question very carefully. ऐसा नहीं है कि आज आपने सुनील शेट्टी पढ़ा तो सुनील शेट्टी है और आज आपने 222E पढ़ा तो 222E ही है। नो, it may not be. They may have juggled with the facts of the case, facts of the particular question, wherein things may turn out to be very, very important due to the change of those facts or change of those figures, those I would say other connected issues given to you. So ये एक हुआ सुनील शेट्टी। मेरा दूसरा केस है पीके अबू बकर, ऑनरेबल चेन्नई हाई कोर्ट। What happened in the case of Madras High Court? It is the Honorable Madras High Court in the case of P.K. Abu Bakar. Friends, in the case of P.K. Abu Bakar, the issue was the amounts were given as an advances to P.K. Abu Bakar for constructing the building which is to be let out by Mr. Abu Bakar to the company which has given the advances. P.K. Abu Bakar was the director, the shareholder. हम अपने इश्यूज से समझे। सर, हमारे नौकार प्राइवेट लिमिटेड करके मान लीजिए हमारी कंपनी है जिसमें हितेश सर इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर एंड डायरेक्टर है। नौकार प्राइवेट लिमिटेड को एक नया बिल्डिंग चाहिए फॉर से रनिंग द क्लासेस, एंड हम प्लानिंग ऐसा करते हैं कि बिल्डिंग हम नौकार प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे नहीं लेते हैं, बिल्डिंग हम लेते हैं डायरेक्टर के नाम पे, हितेश सर के नाम पे, एंड फिर हम इसको नौकार प्राइवेट लिमिटेड को लेट आउट करते हैं। दैट्स अ गुड प्लानिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एचपी एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इवन द अदर इश्यूज। अब नौकार प्राइवेट लिमिटेड को जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट और अदर हितेश सर के इंडिविजुअल नाम पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना था, उसके लिए हितेश सर के पास सफिशिएंट फंड नहीं था। कंपनी ने हितेश सर को 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और यही 3 करोड़ से हितेश सर ने लैंड अक्वायर की अपने इंडिविजुअल नाम पे एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया अपने इंडिविजुअल नाम पे। खास समझना, हाँ, दोनों किसके नाम पे हुआ?
इंडिविजुअल हितेश सर के नाम पे। ये 3 करोड़ की नवकार प्राइवेट लिमिटेड ने लोन दी थी। नवकार प्राइवेट लिमिटेड इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हितेश सर इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दिस वॉज गिवन पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन that we give the loan of 3 crore to Hitesh sir for constructing the building, and यही बिल्डिंग से, यही अमाउंट से सॉरी, हितेश सर लैंड एक्वायर करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद दिस बिल्डिंग टू बी लेट आउट बाय हितेश सर टू नवकार क्रासिस एट, say for example 10 lakh rupee per month rent। अब ऐसे फैक्ट्स थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड, पहले ये 222 ही डायरेक्टर के हाथ में टैक्स होता था, इसीलिए सुनील शेट्टी के केस पे बोला था, अभी पीके अबू बकर के हाथ में बोल रहा हूं। नाउ ऑन दिस 222 ही कंपनी हैज टू पे डीडीटी अगेन, इट इज बैक from May 21 examination taxable in the hands of the shareholder। But friends, इनकम टैक्स ऑफिसर ने हितेश सर के केस में बोला कि आपने 3 करोड़ की लोन ली है तो इट वुड बी 222E। हितेश सर ने कहा सर ये कमर्शियल अमाउंट आई हैव रिसीव्ड। डिपार्टमेंट ने बोला कैसी कमर्शियल अमाउंट? हितेश सर ने कहा कि सर ये अमाउंट जो मैंने रिसीव किया है ना, दैट इज फॉर अक्वायरिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, एंड दिस बिल्डिंग आई एम सपोज टू लेट आउट टू company only. So company is giving me the advance which would be used for the benefit of the company। डिपार्टमेंट ने कहा हितेश सर ये बिल्डिंग तो आपके इंडिविजुअल नाम में परचेज हो रहा है। सर ने कहा बराबर है, पर इसको मैं लेट आउट तो किसको करने वाला हूं? कंपनी को ही करने वाला हूं ना, भले बिल्डिंग इंडिविजुअल नाम में परचेज हुआ। दूसरा, ये लोन एडवांस आप नहीं कह सकते। अगर आपको इसको गिनना हो ना तो आप इसको एडवांस रेंट गिनो। कितने महीने का एडवांस रेंट? डिपार्टमेंट ने बोला सर 30 महीने का एडवांस रेंट। आप में से काफी लोग पेइंग गेस्ट में रहते होंगे, पीजी में। कहीं पे देखा है कि एडवांस रेंट या रेंट डिपॉजिट 30 महीने के लिए हो, 2.5 साल की? मैंने कहीं पे नहीं देखा है मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में। 1 नंबर 2, वो भी कहीं पे ऐसा देखा है कि बिल्डिंग क्या साहब, लैंड जिसके ऊपर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हो वही एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके लिए कोई कंपनी एडवांस देगी डायरेक्टर को? इज इट कस्टमरी? इज इट ट्रेडिशन? इज इट कमर्शियल ट्रांजैक्शन? इज इट द ट्रांजैक्शन फॉर द, आई वुड से, कमर्शियल एक्सपेडियंसी फॉर द कंपनी? एन आंसर फाउंड बाय द ऑनरेबल चेन्नई हाई कोर्ट टू बी नो। Friends, Chennai High Court applied 222E and made this amount taxable in the hands of the shareholder under 222E, because giving loan, giving advance for, I would say, 30 months advance, 2.5 year advance rent, that too for the building which is not yet constructed, or rather the construction yet not been started, is not acceptable, is not been customary, is not been tradition anywhere, and hence 222E was grossly applied and yes, rightly applied by the Honorable Chennai High Court। दोनों जजमेंट में डिफरेंस समझिए। सुनील शेट्टी में वो गए थे कंपनी के नाम पे बिल्डिंग लेने के लिए, यहां पे अबू बकर ने अपने नाम पे बिल्डिंग लिया, सुनील शेट्टी ने रुपए लौटा दिए। यहां पे रुपए इज एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर रेंट ऑफ 30 months फॉर एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, एंड हेंस थिंग्स आर totally different. Abu Bakar, Honorable Chennai High Court, 222E will be definitely applicable. Now, with this is, I would say, 222E from my side, friends. Number of issues are coming in the practicality, but एक चीज समझिए, genuine trading advances हो गए, बिजनेस कनेक्टेड एडवांसेस हो गए, जेन्युइन रेम्यूनरेशन इन एडवांस होगा तो 222E अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज आई अफ्रेड यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंस ऑफ 222E, एंड कंपनी हैज टू पे फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन 30% DDT विदाउट द ग्रॉसिंग अप। अब ये मेरा डिविडेंड का पार्ट हुआ। फ्रेंड्स, सर मेरे पास
एज फार एज दिस डिविडेंड पार्ट इज कंसर्न, एक मुद्दा मेरा अभी पेंडिंग है, एंड दैट इज अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन बाय द ऑनरेबल द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, एंड दैट इज 115 BBDA. Now see what exactly is the section proper. 115 BBDA है क्या friends? As far as this BBDA is concerned, issue goes this way. Or let's first understand the reason for the particular section. Honorable फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने देखा कि डीडीटी 15% से पेएबल है. मैं अभी इसके एग्जैक्ट इफेक्टिव रेट पे आऊं. तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करें फ्रेंड्स, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जाए तो उसको डीडीटी भरना पड़े 15% से. अब तक मैंने ये 15% में कभी भी सरचार्ज ऐड नहीं किया है, बट ऑलवेज 12% दैट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज इज एडेड. तो आया 16.8 एंड उसके ऊपर 16.8 के ऊपर 4% सेस इज ऑल्सो ऑलवेज एडेड. So 16.8 multiplied by 1.04 करे तो दिस वुड बी कमिंग टू 17.47% विदाउट ग्रॉस अप. अब दो मैथोडोलॉजी ये लोग ले रहे हैं. एक ऐसा ले रहे हैं कि 17.47 100 में से लेस करो तो शेयर होल्डर को आप कितना दो, 82.52 और 53. अब 17.47 डिवाइडेड बाय 82.53 परसेंटेज करो तो आपका डिविडेंड का रेट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21%. बराबर है. बट ये आपका एपरेंटली डीडीटी हुआ. अब साहब यहां पे I would say कि if you are having, ये एक मेथोडोलॉजी होती थी. अच्छा, दूसरी मेथोडोलॉजी ऐसी होती थी, ये मैं खाली नॉलेज पर्पस के लिए समझा रहा हूं. कंपनी डीडीटी निकालो 15, शेयर होल्डर को दे दो 85. अब शेयर होल्डर को 85 देने पे कंपनी को डीडीटी के 15 प्लस 1.8 प्लस 4% करके 17.47 बढ़ने के. तो शेयर होल्डर को 85 जाएगा एंड डिपार्टमेंट को 17.47 जाएगा, या यहां पे शेयर होल्डर को 82.53 जाएगा, डिपार्टमेंट को 17.47 जाएगा. ये दोनों मेथड एग्जिस्टेंस में है. हमारा इंस्टीट्यूट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज फॉलोइंग दिस मेथड, सो वी विल ऑल्सो बी गोइंग विद दिस मेथड. अब इसमें 85 के ऊपर 17.47, तो हाउ मच इज टू 100 अगर आप निकालोगे ना, तो आपका डीडीटी का रेट आएगा 20.55%. दिस इज द रेट ऑफ डीडीटी. नाउ लिसन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उन्होंने मुकेश अंबानी साहब को डिविडेंड दिया, तो कैन वी से ये 20.55% का डीडीटी भरा. मुकेश जी के हाथ में ये एग्जाम था.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, मैं भी थोड़ा बड़ा छोटे मोटे शेयर्स हैं, मुझे डिविडेंड दिया, कंपनी डीडीटी भरेगी, मेरे हाथ में ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। अब मैं पलक इंडिविजुअल फॉल्स अंडर, से फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स 20%, मुकेश भाई needless to mention falls under 30% plus surcharge plus cess। अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने सोचा कि ये डिविडेंड RIL ने मुकेश अंबानी को दिया, डीडीटी 20.55% आ रहा है, यही डिविडेंड अगर मुकेश जी के हाथ में टैक्स होता तो ये 30% से टैक्स होता। गवर्नमेंट को इसमें 10% का नुकसान जा रहा है। सर एक बार तो सोचा अरुण जेटली जी ने कि लेट द डिविडेंड बी मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जैसा May 21 November 21 एग्जाम के लिए है। बट फिर इमीडिएटली सोचा कि नहीं साहब, सामने ऐसे भी शेयर होल्डर है जो कम परसेंटेज में फॉल हो रहे हो, मे बी 10 और नाउ नॉट 10 सॉरी 5 और 0, जिसमें कंपनी को और अदर सॉरी डिपार्टमेंट को नुकसान जाए। मिस्टर जेटली वांटेड टू कम आउट विथ सम स्मार्ट मैकेनिज्म एंड ही सेड दैट सी हियर he provided that if receiver is resident assessee but resident other than domestic company, डोमेस्टिक कंपनी को ये डिविडेंड मिले तो फ्रेंड्स 222E पिक्चर में लाना, सॉरी माय मिस्टेक, 115 BBDA पिक्चर में लाना नहीं है। इफ रिसीवर इज रेसिडेंट असेसी, दिस प्रोविजन 115 BBDA इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट, इज एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट असेसी, इज इंडिविजुअल HUF फॉर्म AOP BOI LLP। रिसीवर इज रेसिडेंट असेसी and receives dividend from domestic company, then aggregate dividend during previous year up to 10 lakh, nothing will be taxable. But if it exceeds 10 lakhs, अगर ये 10 लाख से ऊपर हो रहा है तो up to 10 lakh it is not taxable. Balance will be taxed to the shareholder in IFOS at the rate of 10% under 115 BBDA. Look at a very smart mechanism by my department. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी को डिविडेंड देगी तो 20.55% तो उन्होंने भर दिया। मुकेश भाई के हाथ में 10% ले लो, चलो हो गया 30, पता चला सॉरी हो गया 30%। टोटल मिलके कितना रिसीव कर रहे हो, 30%। दूसरा फ्रेंड्स,
ये डिविडेंड में हर एक डिविडेंड कवर करने का एक्सेप्ट डीम्ड डिविडेंड, एसेट दो, बोनस दो, डिपॉजिट डिबेंचर्स दो, कुछ दो कैपिटल डिडक्शन पे, वो सब इंक्लूड करना है एक्सेप्ट डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन क्या लिखा हुआ है 222E। 222E की लोन को 115 बीबीडीए में कवर नहीं करना है, इसलिए 115 बीबीडीए में 222E की लोन को कवर नहीं करना है बिकॉज इसके ऊपर डीडीटी का रेट ही कितना परसेंट है, 30%। फिर से शेयर होल्डर के हाथ में इसको टैक्स करने की जरूरत नहीं है। आप 222E लोन एडवांस सिवाय के सभी डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, एसेट दी, बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिए, डिबेंचर डिपॉजिट दिए, वो सब अमाउंट का क्या कीजिए, टोटल कीजिए। और वो सब अमाउंट का टोटल शेयर होल्डर के हाथ में, रिसीवर के हाथ में फ्रॉम एनी डोमेस्टिक कंपनी आई एम यूजिंग, इफ एनी डोमेस्टिक कंपनी, इसका एग्रीगेट टोटल हो रहा है 10 लाख से ज्यादा तो 10 लाख तक कुछ टैक्सेबल नहीं, 10 लाख से ऊपर जो मिला है ना, दैट इज गोइंग टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर एट द रेट ऑफ 10% under section 115 BBDA of the Income Tax Act, plus obviously shareholder के हाथ का applicable rate of surcharge and applicable rate of cess would definitely be coming into play. Friends, यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐसी होगी भाई कि मान लो कि मैं शेयर होल्डर हूं एंड ऑब्वियसली मैं रेसिडेंट हूं, मुझे डिविडेंड आया रिलायंस इंडस्ट्रीज से 3 लाख। भाई इतना नहीं आ रहा है, हाँ इतना आता तो अपना कोई लाइफ में टेंशन ही नहीं होता। टीसीएस से 2 लाख, इंफोसिस से 1,20,000। मैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड करके इंडियन कंपनी में डिविडेंड हूं, अब शेयर होल्डर हूं, उससे 80,000। अच्छा, मुझे से फॉर एग्जांपल लोन बाय वाई प्राइवेट लिमिटेड, आई एम हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये वाई प्राइवेट लिमिटेड से मुझे 2.5 लाख की लोन मिली एंड मुझे से फॉर एग्जांपल असेट बाय Z Private Limited, which is covered by 222A, this is, and this is covered by 222E. तो ये मुझे जो असेट मिली वो कितने की मिली, जो 222A हुआ 5 लाख। सर इतनी इंफॉर्मेशंस मुझे दी हुई है। नाउ इन माय केस माय पोजीशन इज, कैन आई से फॉर पलक resident, dividend, RIL, TCS, Infosys, X प्राइवेट लिमिटेड से भी लेने का। 222E वाई प्राइवेट लिमिटेड का नहीं लेना है एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड का वेरी इंपॉर्टेंट 222A लेना है। 222E इसलिए नहीं लेना है बिकॉज वाई प्राइवेट लिमिटेड ने उसके ऊपर कितना डीडी भर दिया होगा, 30%। गवर्नमेंट ने रिकवर कर दिया। फंडा समझो, ये सेक्शन इसलिए लाए हैं बिकॉज ये सेक्शन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न 30%, 20% कंपनी से, 10% किससे, शेयर होल्डर से। जेड प्राइवेट लिमिटेड से मिला 5 लाख 222A, इसके पर डीडीटी 20.55% से ही आया होगा। सो टोटल आया मेरे हाथ में 5 + 5 10 + 2 12, 10 लाख रुपए नॉट टैक्सेबल। 2 लाख रुपए विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 10% टू पलक रेसिडेंट इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, ये एक मुद्दा हुआ।
222E खास समझना इज नॉट इंक्लूडेड, ओनली इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड इज इंक्लूडेड। नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए है, मई 21 नवंबर 21। आप लोगों को तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं लेना है, आप लोगों के लिए तो ये सब क्या हो जाने वाला है, taxable in the hands of recipient because company is not supposed to pay dividend distribution tax। आपके लिए 115 BBDA अप्लीकेबल ही नहीं होगा। इसलिए अप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज आपके लिए तो डिविडेंड ही 56 नंबर के सेक्शन में क्या हो जाएगा, 56(2) में टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ सी फ्रेंड्स, विथ दिस डिविडेंड आई एम लेफ्ट विथ ओनली वन फंडामेंटल ऑफ डिविडेंड, दैट इज 115O में कंपनी को भरना पड़ता है DDT, राइट फ्रेंड्स। अब ये DDT का जो फंडामेंटल है वो कंपनी पेज द सेम while distributing the dividend to the shareholder। Again, this is November 2020 because 115O, 115R is also abolished for May 21, November 21। 115O में पॉइंट ऐसा है कि कंपनी हैज टू पे 15% ग्रॉस अप। अब 115O में 115O 1 एकड़ का सेक्शन है जिसमें ऐसा कहा है कि इफ डोमेस्टिक कंपनी, वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, हैज रिसीव्ड dividend from its subsidiary company during previous year। डोमेस्टिक कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी से प्रीवियस ईयर में डिविडेंड लिया है, ऑन विच if subsidiary company is also domestic company, they have paid DDT, and subsidiary company if foreign company, tax to receiver company, tax to receiver company। Now listen, अगर डोमेस्टिक कंपनी हैज रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन विच सब्सिडियरी कंपनी हैज आइदर पेड DDT, इफ डोमेस्टिक और इफ फॉरेन कंपनी सब्सिडियरी इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर हमने टैक्स भर दिया है, देन व्हेन दिस डोमेस्टिक कंपनी gives dividend to its own shareholders, DDT is payable on net amount after adjustment of dividend received। DDT is to be payable only on the net amount। मैं समझाऊं क्या कहना चाहता हूं। So there is पलक लिमिटेड। पलक लिमिटेड का Q लिमिटेड में मान लीजिए फ्रेंड्स के 55% शेयर होल्डिंग है। पलक लिमिटेड का RINC फॉरेन कंपनी है जिसपे मान लीजिए 53% शेयर्स है, एंड पलक लिमिटेड का फ्रेंड्स मान लीजिए
एस लिमिटेड करके कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है जिसमें 45% शेयर्स है। अब इतनी आपको छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन पलक लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को 8 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है। अब यही पलक लिमिटेड को क्यू लिमिटेड से करंट ईयर में डिविडेंड आया है 2 लाख। RINC से करंट ईयर में डिविडेंड आया है 150 एंड एस लिमिटेड से करंट ईयर में डिविडेंड आया है 180। एक चीज समझो, क्यू लिमिटेड ने अपने डिविडेंड के ऊपर डीडीटी भरा होगा, एस लिमिटेड ने अपने डिविडेंड के ऊपर डीडीटी भरा होगा। RINC का ये जो 150 का डिविडेंड आया वो पी लिमिटेड के हाथ में क्या हो गया होगा, टैक्सेबल। ये एक जने ने डीडीटी भर दिया है या अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भर दिया है। नाउ पलक लिमिटेड जब ये अमाउंट अपने शेयर होल्डर को 8 लाख डिस्ट्रीब्यूट करे तो पलक लिमिटेड को 1150(1)(a) नंबर के सेक्शन में क्यू लिमिटेड से जो आया है, कितना आया है क्यू लिमिटेड से, 2 लाख का एडजस्टमेंट मिलेगा बिकॉज क्यू लिमिटेड इज सब्सिडियरी। आर लिमिटेड से जो आया है, आर लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडियरी जिसके 53% शेयर है पी के पास, उसका भी एडजस्टमेंट मिलेगा। बट एस लिमिटेड का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भले 180 आए, भले एस लिमिटेड ने इसके ऊपर डीडीटी भरा, बट एस लिमिटेड इज नॉट अ subsidiary company. This adjustment is available only if the dividend is received by me from subsidiary company and distributed by me to my shareholder during the year itself. तो मुझे that is P Limited को जो DDT भरना पड़े वो कितने के ऊपर भरना पड़े? 4.5 लाख रुपए के ऊपर ही मुझे डीडीटी भरना पड़े। सर, जो 8 लाख के ऊपर जनरल डीडीटी आता है वो 8 लाख पे नहीं बढ़ने का, मुझे डीडीटी कितने के ऊपर बढ़ने का? 4.5 लाख रुपए के ऊपर। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रोविजन फॉर माई असेसी। क्यों फैंटास्टिक प्रोविजन फॉर माई असेसी? द रीजन बीइंग फ्रेंड्स, हियर एडजस्टमेंट ऑफ द डीडीटी इज अवेलेबल in the hands of dividend received if been distributed by the domestic company to its own shareholder. If the dividend is received from subsidiary company and subsidiary company has paid DDT, or this dividend is taxable in the hands of the receiver company, if it is from foreign subsidiary, then while receiver is distributing the dividend further to its own shareholder, such dividend received from subsidiary company is adjusted while computing the dividend distribution tax. It is the situation at present. It is the story at present. अब इतना मेरे पास फ्रेंड्स डिविडेंड रिलेटेड था। एक यहां पे क्लियरिटी दे दूं कि मैं अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी का ऑन करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर इनकर करता हूं ना, तो ये एक्सपेंडिचर मेरा अलावेबल नहीं है एज पर सेक्शन 14 है, which says that any expenditure incurred for the purpose of earning exempt income is not eligible for deduction. ये डिविडेंड इंडियन कंपनी का एग्जम्प्ट है, बट उसके लिए रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो किए होंगे, मैंने लोन लेके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आई एम एबल टू प्रूव द नेक्सास ऑफ द लोन एंड नेक्सास ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, बट लोन का इंटरेस्ट मुझे अलावेबल नहीं मिलेगा बिकॉज डिविडेंड मेरा एग्जम्प्ट है, तो लोन इंटरेस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट इज फ्रेंड्स, इफ माई असेसी इज टैक्स अंडर 115 बीबीडीए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सेक्शन लिया 115 बीबीडीए में, आप देखो तो ये 10 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट क्या हो गया? टैक्सेबल।
तो ये जो टैक्स हुआ वो तो एग्जम्प्ट नहीं है। क्या इससे एक्सपेंडिचर जो किए उसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। आपको कोई एक्सपेंडिचर 115 बीबीडीए में स्पेसिफिकली सेक्शन में ही लिखा है कि एक्सपेंडिचर इज नॉट डिडक्टिबल। सो डिविडेंड अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर की इंडियन कंपनी डिविडेंड अर्न करने के लिए डिविडेंड इज एग्जम्प्ट, और इवन इफ इट इज टैक्सेबल अंडर 115 बीबीडीए, एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउेबल। बट आपने इंटरेस्ट कमाया है और इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए वो एक्सपेंडिचर का आपको फुल्ली डिडक्शन मिलेगा। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? 57 में। सो फ्रेंड्स, ये आपको खर्चा डिडक्टिबल मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतने जो मेरे प्रोविजंस मैंने लिए वो डिविडेंड, इंटरेस्ट रिलेटेड थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फ्रेंड्स, आई वुड से दैट देर आर 4 सेक्शंस which are playing important role. 56 हम चार्जिंग सेक्शन में, उसके साथ साथ मैं 57 अलावेबिलिटी ले रहा हूं। 58 जो है ना वो सिमिलर टू सेक्शन 40 ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, एंड 59 बैलेंसिंग चार्ज इज सिमिलर टू सेक्शन 41 ऑफ द टॉपिक बिजनेस प्रोफेशन, जिसको हम यहां पे कवर अप नहीं करेंगे। दैट वुड बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन इन द बीएनपी। नाउ लिसन, If I take you to other income chargeable under that income from other source, and अभी जो income from other source में friends chargeable है ना वो रेसिड्यूअरी इनकम है। इंटरेस्ट में ले लिया, डिविडेंड मैंने ले लिया, गिफ्ट मैंने ले लिया, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, एंड मैंने ले लिया एडवांस मनी फॉरफिटेड। 5 जो सबसे महत्व की अमाउंट थी वो मैंने ले ली। नाउ आई एम सपोज टू कवर अप अनदर 5 आइटम विथ certain other issues under 56 bracket 1. Friends, अगर 56(2) की टैक्सेबिलिटी देखें तो इफ यू रिसीव रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर, इफ नॉट बिजनेस, सर डेकोरेटर जो अपनी चेयर्स, फर्नीचर्स वगैरह किसी को लेट आउट करते और रेंट कमाते, इनका मेन एक्टिविटी ही है बिजनेस इनकम कमाने का। उनके लिए जो इनकम आएगी दैट इनकम विल बी चार्जेबल अंडर दैट बिजनेस प्रोफेशन, एंड उनको सभी खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। बट मान लीजिए कि अभी मान लो कि मेरी ऑफिस बंद है और मैं मेरी ऑफिस की चेयर्स किसी को लेट आउट कर दूं और रेंट कमाऊं। मेरी मेन एक्टिविटी रेंट कमाने की नहीं है। दैट रेंट विल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये चेयर का मैं डेप्रिसिएशन बिजनेस प्रोफेशन में लेता ही हूं। चेयर्स का कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आया तो मैं बिजनेस प्रोफेशन में अलाउेबल लेता ही हूं, बिकॉज मेरी बिजनेस की चेयर है। बट इसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस मैंने जो लेट आउट किया था उसमें वापिस आए और कुछ तोड़फोड़ होके आए और खर्चा करना पड़े, तो दैट वुड बी फुल्ली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57 अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, मैं मेरे घर की चेयर लेट आउट करूं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वॉट एवर द एक्सपेंडिचर, आई मीन वॉट एवर द रेंट आई रिसीव, से मैंने मेरे डाइनिंग टेबल की चेयर्स लेट आउट कर दी 2 दिन के लिए। मान लो कि किसी को कुछ नीचे ऐसा स्पीच जैसा रखना था और बोला कि अभी बाहर से चेयर्स नहीं आ सकती है तो आपके घर की चेयर दे दो, हम आपको 100 रुपए पर डे का रेंट देंगे। मैंने मेरे घर से 10 चेयर दे दी, 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10 करके 1000 रुपए कमाए, 1000 रुपए चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये घर की चेयर के ऊपर तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं लेता हूं, कुछ खर्चे का भी डिडक्शन नहीं लेता हूं। कोई रिपेयर मेंटेनेंस जनरली घर की डाइनिंग टेबल की चेयर या गार्डन चेयर के ऊपर ना मिले, बट ये चेयर वापिस आई जो मैंने लेट आउट की थी 1000 रुपए में, उसके डायरेक्ट कनेक्टेड कोई खर्चे की अगर मैं प्रूव कर सकूं तो उसका मुझे 57 में डिडक्शन मिलेगा। दैट इज 1। दूसरा 56(2) में है रेंट ऑफ हाउस with furniture if it is inseparable। हाउस का रेंट आपने लेट आउट किया है फर्नीचर के साथ और ये सेपरेबल ना हो, देन इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लाइक मैं हाउस लेट आउट करूं 1,80,000 रुपए में
और ये 1,80,000 रुपए में से मान लीजिए 1,20,000 हाउस का है और 60,000 फर्नीचर का है, मैं बाइफरकेट दे सकता हूं ना, तो दिस वुड ट्रैवल टू HP एंड दिस वुड ट्रैवल टू, बोलिए फ्रेंड्स, आईफोर्स। फ्रेंड्स, दूसरा इंपॉर्टेंट इज, अगर ये बाइफरकेशन 180 का नहीं दिया होता, ऐसे सुपर बाइफरकेशन दिया है ना 120/60 ऐसा, इफ इट वुड हैव बीन अ वर्ड यूज्ड इज कंपोजिट रेंट, then this composite rent will be chargeable under the head income from other source. Even if the major part pertains to house, it should go to income from other sources. Why it should go to income from other source? The reason being, friends, this composite rent would be part and parcel of the topic income from other sources. हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में खाली हाउस का ही रेंट जा सकता है, अदर फर्नीचर रेंट, अदर रेंट कैन नेवर, अदर इनकम कैन नेवर एंटर इनटू HP. But other source being a dustbin head, whatever is not welcome by any other head will be traveling to income from other sources, friends. So it can be charged under the head income from other source. अब देखिए तीन जो अमाउंट मेरी छोटी छोटी है, they are the three amounts which are related to the other item chargeable under the head income from other source. उसमें मेरा पहला मुद्दा है, friends, if I am getting family pension, sir, family pension would be chargeable under the head income from other sources. The question arises, what exactly is meant by the family pension? Sir, खास समझना, as far as the family pension is concerned, कंसेप्ट ऐसा है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट अगर मान लीजिए भाई कि केडिला लिमिटेड एम्प्लॉयर है, मिस्टर एक्स इसमें एम्प्लॉई है, एंड यहां पे रिलेटिव ऑफ मिस्टर एक्स। केडिला जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देते हैं ना, तो दैट वुड डेफिनेटली बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ फॉर मिस्टर एक्स. कैन वी से दिस सैलरी विल बी पार्ट एंड पार्सल फॉर मिस्टर एक्स अंडर द हेड सैलरी. अब मिस्टर एक्स रिटायर हो जाए और उनके रिटायरमेंट के बाद कंपनी से मिस्टर एक्स को जो पेंशन मिले ना, दैट पेंशन विल बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी. दैट इज एज सिंपल एज यू अंडरस्टैंड. दैट पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. अब सुनो, पोजीशन ऐसी हुई कि मिस्टर एक्स को ये पेंशन जो मिलेगा सैलरी में जाएगा, कम्यूटेड अनकम्यूटेड करके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके, सैलरी के रूल अप्लाई करके इसको टैक्स करने का. अब एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाए एंड आफ्टर द डेथ इफ द पेंशन इज रिसीव्ड बाय द रिलेटिव, then in the hands of relative this pension will be chargeable under their income from other source. and ये जो अदर सोर्स में पेंशन चार्ज होगा ना, उसमें से रिलेटिव को 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम विच एवर इज लेस का क्या मिलता अंडर सेक्शन 57 में डिडक्शन मिल जाता. समझो एक्स एम्प्लॉय था, तो अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, इवन इफ पास्ट एम्प्लॉयर से कोई भी अमाउंट मिल रही है तो दैट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी. उनके रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को ही पेंशन मिले सैलरी, बट एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय को रिलेटिव को मिले तो रिलेटिव के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप केडिला लिमिटेड की नहीं है. एंड केडिला लिमिटेड से रिलेटिव को जो पेंशन मिले दैट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मान लीजिए ये पेंशन जो एम्प्लॉय के रिलेटिव को मिला वो 60,000 था,
तो 60,000 के 1/3 20,000 ये वाला और 15,000 विच एवर इज लेस का डिडक्शन लेके 15,000 नेट टैक्सेबल 45। बट अगर 30,000 का पेंशन मिलता तो 10,000 और 15,000 विच एवर इज लेस करके कितने का डिडक्शन मिलता 10,000 एंड व्हाट वुड बी टैक्सेबल इज 20,000। फ्रेंड्स ये मुद्दा था। 2004 में जब चिदम्बरम सर ने चार्ज लिया तब बोला कि फैमिली पेंशन शुड बी चार्जेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दैट इज परफेक्टली फैक्ट, दैट इज परफेक्टली क्लियर, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, इट शुड बी। बट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम सेड कि यार ये जो आप टैक्स कर रहे हो ना उसमें हम लोगों को थोड़ी परेशानी है। मुझे जो थोड़ी परेशानी है ना वो ऐसी है कि आर्मी मैन सोल्जर्स हमारी कंट्री के, दोज हु आर गिविंग अप द लाइफ फॉर द नेशन, उनके फैमिली मेंबर को हमारी गवर्नमेंट एक छोटा सा पेंशन देती है रिलेटिव ऑफ आर्मी मैन, दोज हु लॉस्ट द लाइफ इन ऑपरेशनल ड्यूटी। और उसके ऊपर भी अगर हम टैक्स लगाने दौड़े, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टैक्स लगाने जाए तो दिस इज एन इनजस्टिस टू द रिलेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर in the army. This is total injustice to them and hence there should be some benefit which should be made available to them. That is the reason they have provided that if friends under section 10 bracket 19, if my assessee is an assessee who is employee of Indian Armed Force, very clearly written, including पैरामिलिट्री फोर्स। आर्म फोर्स का मतलब है आर्मी, नेवी और आई वुड से एयरफोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब है फ्रेंड्स ही मे बी सीआरपीएफ, एनएसजी, ही मे बी बीएसएफ, ही मे बी आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। इफ ही इज एम्प्लॉय ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, he has lost life in ऑपरेशनल ड्यूटी। ऑपरेशनल ड्यूटी मीन्स वॉर हुआ और उसमें उसकी डेथ हुई, या मान लीजिए फ्रेंड्स के वॉर नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें उनकी डेथ हुई, वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इन जम्मू एंड कश्मीर, इन टेररिस्ट अटैक ही डाइड। पुलवामा अटैक जिसमें हमारे काफी जवान शहीद हुए थे फ्रेंड्स, दे वर परफॉर्मिंग ऑपरेशनल ड्यूटी। अब उनके फैमिली मेंबर को अगर पेंशन मिले, पेंशन इज रिसीव्ड बाय द रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड। If they are performing operational duty does not mean only war. It would be duty and terrorist attack has happened. और say for example flood आया, उसमें say for example आर्मी की ड्यूटी लगाई और उसमें किसी आर्मी मैन की डेथ हुई, या say for example अभी COVID-19 उसमें आर्मी की ड्यूटी लगाई हुई और उसमें मान लीजिए कि ड्यू टू से दिस पर्टिकुलर डिसीज ही इज इन्फेक्टेड विथ एंड ही डाइज, ही इज इन्फेक्टेड ड्यू टू his duty he was performing, and if he dies then also it would be termed as operational duty friends. Operational duty का मतलब गोली लगने से डेथ हो या वॉर में डेथ हो ऐसा नहीं है साहब, it's a broader meaning one has to take. If he dies while performing operational duty and pension is received by relative, then such pension will be fully exempt under 1090. मुझे मेरी डेथ के बाद मेरे फैमिली मेंबर को केडिला लिमिटेड से, अज्यूम आई एम एम्प्लॉय ऑफ केडिला, पेंशन मिले तो मेरे फैमिली मेंबर के हाथ में टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आफ्टर अलाउिंग 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस एज डिडक्शन। बट अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि इट इज रिसीव्ड बाय द रिलेटिव ऑफ आर्मी मैन एंड दैट आर्मी मैन हैज लॉस्ट लाइफ ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटी,
then it is very important to note that it is not at all taxable. What about those who are other government employee? 1019 is applicable? No. But for other government employee, like say for example, Indian police, they are also performing excellent duty, friends, at present in this COVID-19. पुलिस वाले बेचारे रोड पे पिछले 10, 12, 15 दिन से खड़े हैं. They are performing their duties without thinking of their life, without thinking of this heat. हम तो एसी में बैठ के यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग शांति से एसी में अपने फैन के घर में फैन के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो. वो बेचारे गर्मी में अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं. नाउ इफ सम पुलिसमैन इज इन्फेक्टेड with, say for example, this infection of COVID-19 and God forbids and he dies, family pension received by his relative would be exempt? Apparently under 1019, no, because policeman is not covered by Indian Armed Force. But वहां पे एक beneficial provision ऐसा दिया है कि अगर ये पुलिसमैन को ड्यूरिंग लाइफ टाइम और डेथ कुछ अवार्ड मिलता और कुछ मेडल मिलता एंड उसके बाद उनके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन मिलता, तो ये अवार्ड रिवॉर्ड भी एग्जम्प्ट हो जाता, फैमिली पेंशन भी क्या हो जाता, एग्जम्प्ट. एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी से प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर की अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी में कोविड-19 के दौरान डेथ हुई. हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस लेने की ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स, और उनको गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, मेडल दिया. गवर्नमेंट हैज अनाउंस सम मनी इफ दीज पीपल हु आर डूइंग देयर ड्यूटी टू whom we are indebted for the lifetime. Those who are doing their duty, if dies during their operational duty, गवर्नमेंट उनको कुछ कंपेंसेशन देंगे, कुछ अवार्ड देंगे. ये अवार्ड ये डॉक्टर के फैमिली मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट. बट प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर को जो फैमिली पेंशन मिलेगा ना, उसके लिए अभी तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. तो दैट फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 वर्थ 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस एज माई डिडक्शन. सो ये मेरा एक फंडामेंटल हुआ फैमिली पेंशन रिलेटेड. अच्छा, इससे ही कनेक्टेड है amount received from कीमैन पॉलिसी. यार एक जोरदार प्लानिंग था ये कीमैन पॉलिसी. तो फ्रेंड्स आई टेल यू क्या प्लानिंग था, मैं समझाऊं. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है, से फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई की अवेलेबिलिटी के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भर के यह पॉलिसी ली हुई है. फंडा ऐसा है कि से केडिला लिमिटेड करके एम्प्लॉयर है, उसमें मिस्टर एक्स एम्प्लॉई है. मिस्टर एक्स इज अ प्रेशियस एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड केडिला लिमिटेड नोज कि अगर कल को जाके मिस्टर एक्स ना रहा ना, तो उनके नहीं रहने से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा. तो एम्प्लॉयर ने मिस्टर एक्स की अवेलेबिलिटी के लिए इंश्योरेंस लिया है एंड एम्प्लॉयर पेज द प्रीमियम एवरी ईयर टू द इंश्योरेंस कंपनी. अब एम्प्लॉयर ये जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं ना, उसका एम्प्लॉयर को हर साल क्या मिल जाएगा, डिडक्शन. एम्प्लॉयर इज गोइंग टू गेट द डिडक्शन फॉर द सेम इन द टॉपिक बिजनेस प्रोफेशन. ये पॉलिसी मैच्योर होगी, मिस्टर एक्स रिटायर हो जाए, रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए उनकी, या सर्टन पॉलिसीज आर टाइम और अदर आई वुड से विल मैच्योर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टन पीरियड, सर्टन टेन्योर. तो दैट वुड मैच्योर इवन इफ ही इज विद द कंपनी, इट विल मैच्योर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टन पीरियड ओनली. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, इंपॉर्टेंट इज दैट हियर फ्रेंड्स, very relevant to note that originally under section 10D
any amount received from life insurance policy is exempt. Any amount received from life insurance policy is exempt. अब ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग कर दिया हमारे लोगों ने. सर क्या प्लानिंग कर दिया हमारे लोगों ने, ये समझिए. हमारे लोगों ने ये प्लानिंग कर दिया दैट फ्रेंड्स हियर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है विच इज चार्जेबल टू एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी. इंक्रीमेंट का टाइम आया, एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई तेरी सैलरी महीने 5 लाख रुपए है, तेरा खर्चा जो होता है वो 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं है. तेरा हाउसिंग लोन का हफ्ता गिन ले, तूने बड़ी कार ली है उसका हफ्ता गिन ले, तेरा हाउस होल्ड लग्जरी 2.5 लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं है. नाउ बाकी का जो होता है तू सेविंग ही कर रहा है. सेविंग तू जो कर रहा है उसके ऊपर जो इनकम कमा रहा है वो टैक्सेबल है. बोले हाँ, तू इंक्रीमेंट ही ना ले. एम्प्लॉय ने कहा भाई वाई शुड आई डोंट नॉट टेक इंक्रीमेंट. तू ये जो सेविंग कर रहा है वो तेरे रिटायरमेंट के लिए ही कर रहा है, फ्यूचर के लिए ही कर रहा है. बोले हाँ, तो एक काम कर, हम तेरी कीमैन पॉलिसी लेके देते हैं. बोले उसमें क्या होगा. एम्प्लॉय ने कहा, एम्प्लॉयर ने कहा कि यू आर अ प्रेसियस एम्प्लॉय, तो हम तेरी कीमैन पॉलिसी ले लें तो 10 साल तक ये पॉलिसी हम रखेंगे. अगर तू चला गया तो ये पॉलिसी के रुपए किसको मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे, केडीला को मिल जाएंगे. एंड अगर केडीला को मिल गए, 10 साल के अंदर एम्प्लॉय ने रिटायर किया, रिजाइन किया और 10 साल के अंदर अगर केडीला को मिल गए तो केडीला के लिए ये पहले एग्जम्प्ट होता था, ये 1010D से कीमैन को एक एक्सेप्शन दे दिया. आई एम कमिंग टू दैट एक्सेप्शन बट केडीला लिमिटेड विल गेट. 10 साल तूने हमारे यहां जॉब की ना, तो उसके बाद हम ये पॉलिसी तुझे असाइन कर देंगे. अब तू रिटायर कर, रिजाइन कर, पॉलिसी मैच्योर होगी, तुझे रुपए देंगी इंश्योरेंस कंपनी, या तेरी डेथ हो जाए तो तेरे फैमिली मेंबर को रुपए देगी इंश्योरेंस कंपनी. एंड ये जो रुपए तुझे अभी अगर इंक्रीमेंट सैलरी का मिलता तो सैलरी भी टैक्स होती, उसके ऊपर का रिटर्न भी टैक्स होता. बट अगर तुझे मैच्योरिटी पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से रुपए मिल रहे हैं तो ये 1010D में तेरे हाथ में क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट, या तेरी डेथ के बाद रिलेटिव को मिले तो भी एग्जम्प्ट. विल कीप दिस पॉलिसी विच वुड बी मैच्योरिंग ऑल्सो आफ्टर सर्टन टेन्योर. मान लीजिए कि 10 साल के बाद हमने असाइन की, हम 15 ईयर की टेन्योर की पॉलिसी ली है, तूने नेक्स्ट 5 साल भी यही कंपनी में जॉब की ना, तो भी दिस पॉलिसी विल मैच्योर. एंड इवन इफ दिस पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर 15 ईयर्स, after another 5 years, when you are working in the company, this money received by you would be 1010D exempted. And so it has come out with a fantastic planning for the big employees of the company. Immediately my department took a wake up call and said, in 1010D, कीमैन पॉलिसी इज एन एक्सेप्शन. कीमैन पॉलिसी के अमाउंट के ऊपर, कीमैन पॉलिसी के रिसीट के ऊपर जो भी अमाउंट मिले वो अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं, वो अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मान लो कि 10 साल के अंदर हमारे इलस्ट्रेशन में अगर मैच्योर होता और केडीला को मिलता तो दैट वुड बी चार्जेबल अंडर द बिजनेस प्रोफेशन फुल अमाउंट. अगर 10 साल से 15 साल के अंदर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट रेजिग्नेशन डेट पे मिलता या 15 साल तक एम्प्लॉय ने जॉब की एंड आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ टेन्योर एम्प्लॉय को मिलता तो देन इट वुड बी चार्जेबल टू एम्प्लॉय अंडर द सैलरी. बट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती और डेथ के बाद ये अमाउंट किसको मिलती, डेथ के बाद ये अमाउंट मिलती है एम्प्लॉय के रिलेटिव को. देन इन द हैंड्स ऑफ रिलेटिव दिस अमाउंट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सर किसको मिल रहा है ना, दैट वुड डिसाइड कौन से हेड में ये जाएगा. एम्प्लॉयर को मिले तो बिजनेस, एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी, एम्प्लॉय के रिलेटिव को मिले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. एंड दिस वुड बी चार्जेबल विदाउट अलाउइंग एनी डिडक्शन एक्सेप्ट ये प्रीमियम का एम्प्लॉयर को बिजनेस प्रोफेशन के टॉपिक में क्या मिलेगा, फुल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37. इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, कमर्शियली एक्सपेडिएंट, एलिजिबल फॉर डिडक्शन. एंड फ्रेंड्स दिस वुड बी टेकिंग मी टू माई last portion under 56(2), and that is
कैजुअल, ये जनरल मुद्दे हैं, जनरली फाइनल सीए में जनरल मुद्दे नहीं पूछते. आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क एंड दैट्स द रीजन आई एम कवरिंग अप ईच एंड एवरी फंडामेंटल ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सर कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का मतलब है द अमाउंट मस्ट बी नॉन रिकरिंग इन नेचर. जनरली अदर सोर्स सैलरी, बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी में रिकरिंग आइटम ही टैक्स होती है. बट मैंने बोला वैसे कि अगर चार्जिंग सेक्शन 56(2) यहां पे मैं स्पेसिफिक लिखा हूं ना, तो नॉन रिकरिंग आइटम कैन ऑल्सो बी टैक्सेबल इन इवन इफ कैजुअल इज नॉन रिकरिंग. ये एडवांस फोरफिटेड आगे हमने देखा, गिफ्ट हमने देखा नॉन रिकरिंग है, कीमैन पॉलिसी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा नॉन रिकरिंग है. बट देयर इज अ स्पेसिफिक मैंडेट इन द सेक्शन, इट शुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. कैजुअल, इट इज नॉन रिकरिंग and dependent on luck, chance, and not dependent on skill. लक पे बेस्ड हो, चांस पे बेस्ड हो, स्किल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, देन इट वुड बी कैजुअल. लाइक आप लॉटरी से कुछ कमाओ, हाउसी गेम से कुछ कमाओ, क्रॉसवर्ड पजल से कुछ कमाओ. अब बोलोगे कि चलो लॉटरी में या हाउसी में पूरा लक है, क्रॉसवर्ड पजल में तो सर मेहनत करनी पड़ती है. साहब मेहनत करने के बाद भी 25 जनों का आंसर सही होगा, 50 जनों का आंसर सही होगा. अल्टीमेटली प्राइस इज डिसाइडेड बाय लकी ड्रॉ ओनली एंड हेंस इट वुड बी कैजुअल इनकम. अच्छा फ्रेंड्स, इफ यू आर विनिंग समथिंग फ्रॉम बैटिंग और गैम्बलिंग, प्रोहिबिटेड है हमारी कंट्री में, तो फिर भी अगर कुछ बैटिंग से या गैम्बलिंग से कमाओ, पकड़े जाओ, तो इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. कार्ड गेम प्रोहिबिटेड है, कमाओ पकड़े जाओ, तो इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. अच्छा और एक, इफ यू आर विनिंग समथिंग फ्रॉम टीवी गेम सोर्स, वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना. They have very specifically used the word game source. They have not used the word reality source. केबीसी से कुछ कमाओ, या सलमान भाई का आता है 10 का दम, कम या ज्यादा, उससे कुछ कमाओ. Then in that case, it would be my casual income. But आप से मास्टर शेफ ऑफ इंडिया से कुछ कमाओ, वॉइस ऑफ इंडिया से कमाओ, इंडियन आइडल से कुछ कमाओ, डांस इंडिया डांस से कुछ कमाओ, देन ये सब स्किल वाले अब चीजें हैं. बिग बॉस से कुछ कमाओ, स्किल है पॉलिटिक्स की. ये सबसे अगर कुछ कमाओ ना, भले भले whether you are winner or not may be decided on the basis of the messages, but that message, that audience poll or judges poll is on the basis of the performance of yours, skill of yours, and hence it would be professional income. गेम शो से कुछ कमाओ, केबीसी हो, then it would be casual. अब आप बोलोगे कि सर केबीसी से कुछ कमाएंगे ना तो भी कैजुअल कैसे? केबीसी फंडा क्या है? सब फंडा ऐसा है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, एग्रीड, बट यार ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते हैं, 4 लाइफलाइन देते हैं. अब दूसरा, बच्चन साहब के सामने पहुंचने के लिए ही सबसे पहले तो लक चाहिए. आप पहुंचे बच्चन साहब के सामने, काफी लोग अप्लाई करते हैं. व्हाई यू आर गेटिंग सिलेक्टेड? बिकॉज ऑफ योर लक, बिकॉज ऑफ द चांस. 1. दूसरा, 4 ऑप्शन 4 लाइफलाइन. जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा जो आंसर दे रहा है अपनी फील्ड के ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो. कभी कभी आंसर जो आते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन या गेस वर्क भी आते ही है. एंड ये सबको मैं साइड पे रखूं ना भाई, तो भी दैट वुड बी कैजुअल. द रीजन बीइंग, जब ये शो स्टार्ट हुए ना, तब यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे. एट द टाइम देयर वाज कंफ्यूजन कि इसको कहां पे टैक्स करोगे. मिस्टर सिन्हा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में एट दैट टाइम सेड दैट एनी इनकम फ्रॉम टीवी गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, और उस टाइम गोविंदा का शो आता था एक, जीतो छप्पड़ फाड़ के.
should be part and parcel of casual income chargeable under the head income from other source. Same way, if you are earning any income from owning and maintaining the racehorse. If you are owning any horses, maintaining any horses, running them in the race and winning, then also it would be your casual income chargeable under the head income from other sources. Friends, that would also be part and parcel of your income from other source. अब हॉर्सेस को मेंटेन करके रेस में दौड़ाना, उसमें मेन स्किल हॉर्स की है, असेसी की नहीं है, एंड हेंस it is said that it is without skill, it would be income from other source. But if you are winning something from car race or bike race, then it would be professional income. अब ये कैजुअल इनकम कमाने के लिए कोई भी खर्चे करो ना, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस. मैं समझाऊं. मैंने 8,000 रुपए की लॉटरी टिकट ली एंड मुझे 1 लाख का प्राइस लगा. तो 1 लाख का लॉटरी प्राइस टैक्सेबल, 8,000 का खर्चा नॉट डिडक्टिबल. जनरल टूल हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा है कि नेट अमाउंट चार्जेबल होती है. यहां पे ओनली ग्रॉस अमाउंट इज चार्जेबल, नेट अमाउंट इज नॉट चार्जेबल. कुछ अलावेबल नहीं मिलेगा. एक दूसरा मुद्दा फ्रेंड्स खास समझिए, यहां हाउसी के लिए मैंने टिकट परचेस की 2,000 की और मुझे 20,000 का प्राइस लगा. 20,000 टैक्सेबल, 2,000 का डिडक्शन मुझे ना मिले. बट ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस से मैंने मान लीजिए इनकम कमाई, 3 लाख रुपए मेरे हॉर्स रेस में जीते और मैंने कमाया. मैं ओन करता हूं, मेंटेन करता हूं. अब 3 लाख में से मुझे खर्चे हुए थे 60,000, तो मुझे 60,000 का डिडक्शन मिलेगा एंड व्हाट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल टू मी इज 2,40,000 ओनली. मान लो कि 3 लाख की जगह मैंने 30,000 ही कमाए होते और 60,000 का खर्चा हुआ होता, तो भी पूरे 60,000 डिडक्टिबल एंड देयर वुड बी अ लॉस 30,000 विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हॉर्स रेस इनकम. सर, हॉर्स रेस में 2 चीजें होती है. मान लो ये थोड़ा मैं एक, अब उससे पहले एक चीज मैं ले लूं. दिस कैजुअल इज टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%. कितने रेट से टैक्सेबल? 30%. इश्यू इज के कैजुअल इनकम जो हमारी है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर फ्लैट 30%. केबीसी से आप जीतो ना, तो 1 करोड़ रुपए जीतो तो 30% तो गवर्नमेंट ले जाएगी. एंड 30% जो गवर्नमेंट ले जाती है ना, वो खाली नॉलेज पर्पस के लिए यहां पे टीडीएस के फॉर्म में ही ले जाती है, 194B एंड BB में. तो आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए एक भी बार आपके अकाउंट में आएंगे ही नहीं. 70 लाख आपके हाथ में आएंगे, 30 लाख डिपार्टमेंट को जाएंगे. You are considered to be not crorepati if you have won 1 crore from KBC. You are considered to be jointly crorepati with income tax department because 30 lakh will go to income tax department. Friends, point important is ये हॉर्स रेस. मान लीजिए कि मैं ओन एंड मेंटेन करता हूं हॉर्सेस को which are running in the race, right? अब ये जो मैं ओन एंड मेंटेन करता हूं हॉर्सेस को which are running in the race, उसके लिए मैंने से फॉर एग्जाम्पल खर्चा किया हुआ है 1.5 लाख का. अब मेरा खुद का हॉर्स तो कुछ जीता नहीं. 20,000 रुपए में जो जनरल मिलने थे वो मुझे मिले. उसमें से ये खर्चे का डिडक्शन मिले? हाँ बिल्कुल मिले. तो मेरी नेट इनकम कितनी हो गई? 130. बराबर है, ये 130 हो गया. मैंने स्मार्टली मिस्टर बी का हॉर्स रेस में दौड़ रहा था, उसके ऊपर मैंने बैटिंग की थी कि जीतेगा तो मिस्टर बी का ही हॉर्स. देखो, मैं खुद का हॉर्स भी दौड़ा रहा हूं, मैं बैटिंग मिस्टर बी के हॉर्स पे कर रहा हूं और मिस्टर बी का हॉर्स विनर रहा. तो मुझे बैटिंग से 5 लाख रुपए मिले.
सर बी केयरफुल, मेरा ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस 130 गिना जाएगा, मेरी बैटिंग की इनकम 5 लाख गिनी जाएगी, एंड ये दोनों का इन द टॉपिक सेट ऑफ मुझे कोई सेट ऑफ मिलता नहीं है। ये बैटिंग इनकम डिफरेंट है, इट्स टोटली डिफरेंट, एंड ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस की इनकम भी टोटली डिफरेंट है। हॉर्स रेस से खर्चों का डिडक्शन मिलता है, बैटिंग से आप कोई खर्चे का डिडक्शन ना ले पाओ। अच्छा, उल्टा होता, मेरा हॉर्स जीतता और इसके मुझे 6 लाख मिलते, तो मुझे 150 का पूरा डिडक्शन मिल जाता, 4.5 आधा। एंड बैटिंग से मैंने मान लीजिए कि 3.5 लाख गुमाए होते, तो बहुत शांति से समझना, ये 3.5 लाख गुमाए होते ना, तो उसको तो मुझे भूल ही जाना पड़ता, इसका तो मुझे कोई सेट ऑफ नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, कुछ मेरे बेनिफिट मिलने वाले नहीं थे। अब ये केस में बैटिंग का लॉस तो है ना, वो लॉस ही गिना जाएगा, इसको तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं। हाँ, हॉर्स रेस से जो लॉस हुआ ना, ये 5 लाख के ऊपर टैक्स भर के हॉर्स रेस का लॉस आपको क्या मिलेगा? कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली मिलेगा। दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, बैटिंग को सेपरेटली गिनना है एंड हॉर्स रेस को बिल्कुल सेपरेटली गिनना है। फ्रेंड्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। नाउ माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अलग अलग आइटम जो टैक्स होती थी वो मैंने कवर की। 56(1) एक छोटा सा मुद्दा, उसमें 3 कंडीशन फुलफिल हो, इनकम हो, ये इनकम एग्जम्प्ट ना हो, एंड इट इज नॉट कवर्ड इन अर्लियर 4 हेड्स, तो इट वुड बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसकी वजह से साहब कौन कौन सी इनकम यहां पे जा सकती है? एक, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। अब डायरेक्टर अगर कंपनी में रेम्यूनरेशन ले रहा है और उसका 192 या 194 जे हो रहा है ना, तो दैट वुड बी सैलरी और दैट वुड बी प्रोफेशनल। अगर रेगुलरली डे टू डे में इन्वॉल्व है, या ये डायरेक्टर है हमारा, वो से फॉर एग्जाम्पल के काफी अपना टाइम दे रहा है कंपनी में, सेल्स में इन्वॉल्व है, परचेज में इन्वॉल्व है, रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, बैंकिंग में इन्वॉल्व है, कलेक्शन रिकवरी में इन्वॉल्व है, इन दैट केस ही इज गेटिंग सैलरी और ही इज गेटिंग प्रोफेशनल चार्जेस। इट वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी और बिजनेस इनकम। बट डायरेक्टर खाली बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए ही आता है हमारे यहां। लाइक मैं समझाऊं फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी या सर्टन फिल्म स्टार्स are on the board of many companies. Reliance Industries Limited, Sachin Tendulkar is say one of the director in the company who is invited only at the time of board meeting. He attends the board meeting for which he is paid remuneration. This would be chargeable to Mr. Tendulkar under the income from other sources if he is attending only board meeting, not involving himself into day-to-day management of the company. Same way, sir हमारे MP है, MLA है, अगर ये MP MLA मिनिस्टर है इंक्लूडिंग CM और अवर ऑनरेबल PM, देन वॉट एवर दे रिसीव वुड बी सैलरी इनकम, वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी। दे आर कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट वुड बी सैलरी। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट हियर इफ दे आर नॉट मिनिस्टर, then whatever they receive would be income from other source. They are not called employee. For sitting in the parliament or Vidhan Sabha, whatever they are getting would be income from other sources. Third one, friends, paper setting या checking. सर कोई कॉलेज का फैकल्टी है और उनको अपनी कॉलेज से पेपर सेटिंग चेकिंग के लिए कुछ मिल रहा है, देन इट वुड बी सैलरी। बट यूनिवर्सिटी से मिल रहा है उनको, तो आईफोस इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, ICAI के पेपर चेकिंग के लिए मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गेटिंग मनी, इट वुड बी चार्जेबल
two chartered accountant in my opinion under the head income from other sources, because this is not the main activity of the paper checker and what they are receiving is not from the employer, so it would be part and parcel of income from other source. अच्छा, सेम वे फ्रेंड्स, आप वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड लेट आउट करो तो द रेंट रिसीव्ड विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. बट मान लीजिए कि आप हाउस लेट आउट करो तो इट वुड बी हाउस प्रॉपर्टी. ये लैंड लेट आउट की, देन इट वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सेम वे फ्रेंड्स, मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ रेसिडेंस. उन्होंने अपना ये घर मिस्टर वाई को लेट आउट किया है. मिस्टर वाई को रेंट मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को रेंट दिया. सब एक्स के हाथ में ये जो रेंट आएगा दैट वुड बी एचपी. मान लो 1 लाख का रेंट है, हाउस का ही है, हाउस अलोंग विद फर्नीचर नहीं है, इनसेपरेबल नहीं है. वाई ने ये बिल्डिंग लीज डीड में लिखा था कि ही कैन सबलेट, तो उन्होंने ये मिस्टर जेड को सबलेट कर दिया. अब सबलेट आउट के ऊपर वाई ने 1,40,000 का रेंट कमाया. वाई के हाथ में ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखे ना, तो रेंट फॉर सबलेट 140 will be chargeable to Y under the head income from other source, because HP टॉपिक में फॉल होने के लिए one of the condition is you must be the owner of the house. Y is not the owner and subletting would be part and parcel of income from other source. Rent will be 140. उसमें से उन्होंने जो पे किया है ना रेंट, कितने का रेंट पे किया है? 1 लाख का. उसका उसको क्या मिलेगा? डिडक्शन. एंड नेट अमाउंट चार्जेबल विल बी 40,000 to Mr. Y under the head income from other source. Sublet will be income from other sources. Friends, that is very very important. At the same time, सर आपको 4 हेड में जो ना जाए ना, that you can charge under the head income from other source. आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई, इंडिया से कमाई तो एग्जम्प्ट है, बट आउटसाइड इंडिया से अगर आप एग्रीकल्चर इनकम भी कमाओगे ना, तो सच एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. सेम वे फ्रेंड्स, अनडिस्क्लोज इनकम आपकी कुछ मिले, एंड इफ अनडिस्क्लोज इनकम मिले तो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 68, 69, 115 BBE नंबर के सेक्शन में टैक्स होगा. एट द रेट ऑफ 78% टैक्स होगा. कोई हेड नहीं मिल रहा है, देन इट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. लाइक फ्रेंड्स, डिमोनेटाइजेशन के दौरान मान लीजिए किसी सैलराइड पर्सन ने बैंक में कैश जमा करवाई थी. ही कुड नॉट गिव जस्टिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट हैज टैक्स इट अंडर सेक्शन 69. इन दैट केस, इफ इट इज टैक्स अंडर 69A, then this amount will be chargeable under the head income from other source under 115 BBE at the rate of 78%. इसको हम exactly cover करेंगे when I move to section 68, 69A and 115 BBE, but this would be part and parcel of your income from other sources, friends. Same way, friends, अगर से आपको particular कोई, मैं मान लीजिए कि नौकार क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं, उससे वहां से मुझे जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है दैट वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय प्रोफेशनल इनकम. आई एम गेटिंग रेम्यूनरेशन फॉर गिविंग माय प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ टीचिंग ओवर देयर, सो इट वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय बिजनेस प्रोफेशन इनकम. बट मान लीजिए, मैं अज्यूम कीजिए मैं किसी कॉलेज में एज अ विजिटिंग फैकल्टी जा रहा हूं, जिसमें मुझे 6 महीने में 2-1 लेक्चर देते हैं एज अ गेस्ट लेक्चर. Whatever I get is called my honorarium that would be chargeable under the head income from other source. मान लीजिए कि एक आध जगह पे मैं कोई कॉलेज में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसकी कमेटी में हूं अज्यूम, और वहां से मुझे वो मीटिंग अटेंड करने का रेम्यूनरेशन मिलता है. दैट वुड ऑल्सो बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिकॉज दिस आर ऑल नॉट माई मेन एक्टिविटी, दिस आर ऑल माई, आई वुड से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस.
फ्रेंड्स, 4 हेड में अगर इनकम ना आ जाए एंड अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करो, इनकम हो, एग्जम्प्ट ना हो एंड आगे के 4 हेड में कवर ना हुई हो, सब्जेक्ट टू इट शुड नॉट बी an income which is in the nature of capital receipt, then such income may go to income from other sources. Under section 56(1) it can be brought to tax. ये फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा टॉपिक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. एज आई हैव सेड, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के पूरे फंडामेंटल मई 21 नवंबर 21 के लिए बदल गए हैं. उसमें डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. उसमें सेक्शन 57 में आपको एक मैक्सिमम लिमिट का ही डिडक्शन दिया हुआ है. 115O एबोलिस्ट, 115O1A एबोलिस्ट मई 21 नवंबर 21 के लिए, 115 BBDA एबोलिस्ट. सेम वे अगर इंडियन कंपनी ने दूसरी कंपनी से डिविडेंड रिसीव किया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनको 80M नंबर के एक सेक्शन में डिडक्शन देते हैं. वो ये जो वाला मई 21 नवंबर 21 वाला है उसको मैं एग्जैक्टली हाईलाइट करूंगा when I deal with the amendments. Till then, May 21 November 21 friends के लिए अगर इसको देखना हो तो as I've said, you can have the video on my YouTube channel and you can watch the same. But this is my income from other source for November 20 examination dividend, November 20 and other examination for other aspects. Friends, I'll keep it over here. Till then, stay home, stay healthy, stay well. Thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.